السلام علیکم دوستوں، آج جو ہے اردو ادب کے داستان سے متعلق رضو علی بیگ سرور کا جو ہے حیات و خدمات اور ان کے کارنامے، ساتھ ہی ان کے جو داستان فسانہ عجائب ہے، خلاصہ سے جانکاری حاصل کریں گے، تو آپ لوگ اسے ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ یہ جو ہے بی پی ایس سی ٹی آر ای 4.0 اور ڈی ٹرپل ایس بی ٹی جی ٹی کے لیے اہم مواد ہے، تو آپ لوگ اسے پورا واچ کریں۔ تو رضو علی بیگ سرور، تو ان کا جو نام ہے رضو علی بیگ اور تخلص جو ہے ان کا سرور ہے۔ سرور 1200 سن ہجری مطابق جو ہے 1786 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1786 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ کون؟ رضو علی بیگ سرور۔ سرور کا انتقال جو ہے 1286 سن ہجری مطابق جو ہے 1869 عیسوی میں بنارس میں ہوا اور بنارس میں ہی دفن کیے گئے۔ تو پوچھا جاتا ہے رضو علی بیگ سرور کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی ہے؟ تو رضو علی بیگ سرور کی پیدائش 1786 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوئی اور ان کا انتقال جو ہے 1869 عیسوی میں بنارس میں ہوئی اور یہیں ان کو دفن کیے گئے۔ اگلا جو سرور کے والد کا نام مرزا اصغر علی بیگ ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ سرور کے والد کا نام کیا تھا؟ تو مرزا اصغر علی بیگ تھا۔ سرور کی تعلیم و تربیت دہلی میں ہوئی تھی۔ پیدائش جو ہے لکھنؤ میں ہوئی تھی، لیکن ان کی جو ہے اعلیٰ تعلیم جو دہلی میں ہوئی تھی۔ سرور عربی فارسی زبان و ادب کے علاوہ سیاہ سواری، تیر اندازی، خوش نویسی اور موسیقی میں دسترس رکھتے تھے۔ تو سرور عربی فارسی زبان میں بہت سارے ان کو مہارت حاصل تھی، ٹھیک ہے، اور باقی جو ہے ان کے علاوہ سیاہ سواری، تیر اندازی، خوش نویسی اور موسیقی میں کیا رکھتے تھے؟ مہارت رکھتے تھے۔ سرور شاعری میں آغا نوازش حسین خان نوازش کے شاگرد تھے۔ پوچھا جاتا ہے سرور جو ہے کن کے شاگرد تھے؟ تو آغا نوازش حسین خان نوازش کے شاگرد تھے۔ والی اول غازی الدین حیدر نے ایک قتل کے الزام میں سرور کو 1824 عیسوی میں لکھنؤ سے جلا وطن کیا تھا، مطلب یہاں سے ان کو کیا کیا تھا؟ نکال دیا تھا۔ اور سرور کہاں چلے گئے؟ کانپور چلے گئے۔ والی ابد غازی الدین حیدر نے ایک قتل کے الزام میں کیا کیا؟ سرور کو 1824 میں کہاں سے؟ لکھنؤ سے نکال دیا، ٹھیک ہے، اور یہ کہاں چلے آئے؟ کانپور چلے آئے۔ نصیر الدین حیدر نے سرور کا قصور معاف کر کے انہیں لکھنؤ آنے کی اجازت دی۔ تو غازی الدین نے ان کو کیا کیا؟ لکھنؤ سے باہر کر دیا، لیکن نصیر الدین حیدر نے کیا کیا؟ ان کو قصور کو معاف کر دیا اور پھر سے لکھنؤ آنے کی اجازت دیتی تھی۔ کن کو؟ رضو علی بیگ سرور کو۔ واجد علی شاہ نے سرور کو 50 روپے ماہانہ پر درباری شورا میں داخل کر دیا، مطلب درباری شورا میں جو ہے درباری مطلب شاعر میں ان کو کیا کیا؟ واجد علی شاہ نے 50 روپے کی ماہانہ تنخواہ کیا کیا؟ ان کو داخل کیا۔ سرور 1859 میں بنارس سے گئے تھے اور آخر عمر تک یہیں رہے۔ تو 1859 میں بنارس پھر گئے دہلی سے، ٹھیک ہے، پھر وہاں لکھنؤ، پھر کانپور، پھر لکھنؤ، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے بنارس گئے تو وہیں تا عمر تک رہے اور وہیں وفات پائی بنارس میں، اور ان کو جو ہے بنارس میں ہی دفن کیے گئے۔ سرور کے غالب کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھا۔ پوچھا جاتا ہے سرور ایسے کس شاعر کے ساتھ جو ہے دوستانہ تعلق تھا؟ تو غالب مرزا غالب کے ساتھ سرور کا۔ سرور نثر کے اعتبار سے دبستان لکھنؤ کے بانی تھے۔ پوچھا جاتا ہے دبستان لکھنؤ سے کون کون وابستہ ہیں؟ تو سرور رضو علی بیگ سرور جو ہے دبستان لکھنؤ سے بانی ہے یا وابستہ رکھتے ہیں۔ بقول چکبشت ابد پنچ کے پہلے رضو علی بیگ سرور کے درج تحریر پرستش ہوتی تھی، مطلب چکبشت کے اہل زمان سے جو ہے ابد پنچ کے پہلے رضو علی بیگ سرور کے طرز تحریر کی پرستش ہوتی تھی۔ اب جو ہے رضو علی بیگ سرور کے کارنامے، یہ جو تھے ان کے جو تعلیم و تربیت، ان کی حیات اور خدمات تھے، اب ان کے کارنامے، ٹھیک ہے۔ فسانہ عجائب 1240 مطابق 1824 عیسوی میں یہ سرور کی پہلی نثری تصنیف ہے۔ تو فسانہ عجائب کیا ایک داستان ہے، اور 1824 عیسوی میں یہ پہلی نثری تصنیف رضو علی بیگ سرور کے ہیں۔ شگوفۂ محبت 1272 ہجری مطابق جو ہے 1856 عیسوی میں یہ سرور کی تصنیف کردہ دوسری داستان ہے جس کا قصہ مہر چند کھتری کی تصنیف قصہ ملک محمد بگیتی افروز سے اخذ کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہے نثری داستان جو ہے 1824 عیسوی ہے
जिसे तबेजा दास्तान भी कहा जाता है। दूसरी जो है दास्तान जो है शगुफाए मोहब्बत है, जो 1856 ईस्वी में शाये हुआ है। और एक जो है किस्सा मुल्को मोहम्मद बगीती अफरोज की आखिर जो किया गया है वो जो है मेहर चंद खत्री की तसनीफ है, ये शगुफाए मोहब्बत है। गुलजार सरूर 1275 हिजरी या एक तमसीली दास्तान है गुलजार सरूर, और फसाना अजाब के बाद सरूर की दूसरी अहम किताब है। सबसे पहला जो है इनकी अहम किताब जो फसाना अजाब है और दूसरा जो है गुलजार सरूर है। लेकिन दास्तान में जो है सेकेंड वाला जो है शगुफाए मोहब्बत है, लेकिन अहम किताब में गुलजार सरूर जो है दूसरी किताब है। सरूर ने बनारस में वहाँ के महाराजा एस श्री प्रसाद रायन सिंह की हिदायत पर मुल्ला मोहम्मद रजी तबरेजी की फारसी तसनीफ हदायकुल इशराक का तर्जुमा गुलजार सरूर के नाम से किया। तो मुल्ला मोहम्मद रजी तबरेजी की जो फारसी तसनीफ है, ठीक है, हदायकुल इशराक, इसका तर्जुमा जो है गुलजार सरूर के नाम से कौन किए हैं? रजब अली बेग सरूर किए हैं। ये सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंस है, तो आप लोग इसे जरूर रीड करें, पढ़ें। गुलजार सरूर के देवीचा में वालिद अली शाह की माजूली और लखनऊ की तबाही का बयान है। इब्तदा में गालिब की तकरीज भी शामिल है। तो गुलजार सरूर में पूछा जाता है गुलजार सरूर में किस शहर के तबाही का बयान है? तो माजूली और लखनऊ की तबाही का बयान है। सबस्तानी सरूर जो है 1279, ये अलिफ लैला का आसान जबान में तर्जुमा है। तो पूछा जाता है अलिफ लैला का आसान तर्जुमा में जो है रजब अली बेग सरूर ने कौन सा दास्तान लिखा है? तो सबस्तानी सरूर लिखा है। सरूर की दूसरी तसानीफ के बरक्स इस किताब की जबान सादा और सहल है, मतलब इतने आसान जबान में है जिसे कॉमन जो है इंसान भी इसको पढ़ सकते हैं जो पढ़े हैं। सरार इश्क यह एक मुख्तसर किस्सा है। फशाना इबरत 1856 ईस्वी में फशाना इबरत में सरूर ने लखनऊ की आखिरी 4 नवाबों के हालात कलम बंद किए हैं। पूछा जाता है ऐसे कौन सी किताब है जिसमें लखनऊ के आखिरी 4 नवाबों का हालात कलम बंद किए हैं? तो फसाना इबरत। फसाना इबरत किसकी तसनीफ है? रजब अली बेग सरूर की तसनीफ है। अगला तारीखी एतबार से फसाना इबरत अहमियत की हामिल है। सरूर सुल्तानी, सरूर की आखिरी तसनीफ। सरूर सुल्तानी जो है रजब अली बेग सरूर की आखिरी जो है तसनीफ है सरूर सुल्तानी। सरूर ने वालिद अली शाह की फरमाइश पर शाहनामे की फारसी तलखीस शमशेर खानी का उर्दू तर्जुमा सरूर सुल्तानी के नाम से किया है। अब वालिद अली शाह की फरमाइश पर जो है शाहनामा की फारसी तलखीस जो किताब है शमशेर खानी, इनका जो है उर्दू तर्जुमा सरूर सुल्तानी के नाम से रजब अली बेग सरूर ने किया है, जो सरूर की आखिरी तसनीफ है। इंसाई सरूर ये रजब अली बेग सरूर के मकातिबे का मजमुआ है। इंसाई सरूर जो है मकातिबे का मजमुआ है इंसाई सरूर। अब यहाँ से जो है फसाना अजायब दास्तान के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इन्हें भी देखें। फसाना अजायब जो 1824 ईस्वी में जो है मंजर आम पे आया। तो फसाना अजायब सरूर और शुमाल हिंद की पहली अहम तवजात दास्तान है। पूछा जाता है शुमाल हिंद की पहली अहम तवजात दास्तान कौन सी है? तो फसाना अजायब है। ये कब लिखी गई? या ये मंजर आम पाया 1824 इस पर मंजर आम पाया, जिसमें लखनऊ की तहजीब मुआसरत भी पेश की गई। अब पूछा जाता है लखनऊ की तहजीब मुआसरत कौन सी दास्तान में की गई है? तो फसाना अजायब में की गई है। सरूर ने फसाना अजायब को हकीम असद अली की फरमाइश पर कानपुर में 1240 ईस्वी मुताबिक 1824 ईस्वी में तसनीफ किया था, और दास्तान फसाना अजायब पहली बार 1843 ईस्वी में शाये हुई है। अब कलमबंद की 1824 ईस्वी में और शाये हुआ 1843 ईस्वी में। दास्तान फसाना अजायब पहली बार 1843 ईस्वी में शाये हुआ था। ये इंपोर्टेंस है, इसको याद कर लीजिएगा। ये भी इंपोर्टेंस है, तो इसको भी याद करें। PPSC TRE 4 और DSSB TGT के लिए अहम मवाद है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, आते हैं। सरूर ने फसाना अजायब तसनीफ करते वक्त गुलशन नौबहार, बहार दानिश, पद्मावत, दास्तान अमीर हमजा और शरुल बयान से इफादा किया है। सरूर ने जो फसाना अजायब से तसनीफ करते वक्त ये जो है गुलशन इश्क नौबहार है, बहार दानिश है, पद्मावत है, दास्तान अमीर हमजा और शरुल बयान से क्या किया? इनसे मुताल्लिक जो है ये देखे हैं, ठीक है, फसाना अजायब को तसनीफ करते वक्त मुताल्ला किए हैं। फसाना अजायब की इबारत
इंतहाई पर तकल्लुफ नहायत पेचीदा और मुकफ़ा मुसज्जा है। इस तरह कहा जा सकता है कि फसाना अजायब जवान और बयान के एतबार से नौतर्ज मुरस्सा की तकलीद में लिखी गई है। नौतर्ज मुरस्सा जो है अता हुसैन तहसीन की किताब है। ये किताब है, इसका जो उर्दू तर्जुमा किया गया है बागो बहार में किया गया है। ठीक है, जो बागो बहार किनका है आपको पता है तो आप लोग बताइए। ठीक है, तो ये फसाना अजायब जवानों बयान के एतबार से नौतर्ज मुरस्सा की तकलीद में लिखी गई है। सुरूर ने मीर अमन के बागो बहार के जवाब में दास्तान फसाना अजायब लिखी थी। तो ये जो है सुरूर ने पूछा जाता है कि फसाना अजायब जो है कौन सी दास्तान के जवाब में लिखी गई है, तो बागो बहार जो है दास्तान, इसके जवाब में जो है फसाना अजायब रजब अली बेग सुरूर ने लिखी है। तो बागो बहार किसका है, तो अभी पूछे हैं, तो ये जो है मीर अमन दहलवी का है। ठीक है, तो बागो बहार का जो है टॉपिक्स है मीर अमन दहलवी का, ये हयातुल खिदमत और इनका खुलासा जो है आपका प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग से जरूर देखिएगा। ठीक है, और नौतर्ज मुरस्सा जो है अता हुसैन तहसीन की किताब है। इसी का उर्दू तर्जुमा जो है मीर अमन दहलवी ने बागो बहार में किया है। सुरूर ने फसाना अजायब के देवीचा में बागो बहार उसके मुसन्निफ का मजाक उड़ाया और मीर अमन ने दर पर्दा अहले लखनऊ पर बागो बहार में जो चोट की थी उसका बदला लिया। यहाँ पर समझने वाली बात है कि फसाना अजायब के देवीचा में जो बागो बहार और उसके मुसन्निफ का मजाक बनाया है, तो बागो बहार और इसके मुसन्निफ जो मीर अमन दहलवी, इसको मजाक बनाया है फसाना अजायब में, जो कि जवाब में लिखा गया है। और मीर अमन ने दर पर्दा अहले लखनऊ पर बागो बहार में जो चोट की थी उसका बदला है। तो बागो बहार जो दास्तान है लखनऊ की तहजीबी उसमें झलकती है, इसलिए ये कहा गया है कि मीर अमन ने दर पर्दा अहले लखनऊ पर बागो बहार में चोट की थी, इसका बदला लिया है। आगे जो है सुरूर ने फसाना अजायब के मतन में 18 बार तब्दील की है। फसाना अजायब में शामिल अशार सुरूर उसके उस्ताद नवाजिस के हैं और उसके अलावा हाफिज, जामी, सौदा, मीर, मशफी, सौद, जुर्रात और मीर हसन वगैरह के अशार भी शामिल है। कि ऊपर ही आपको बताया गया है कि नौतर क्या था, यहाँ पर देख लीजिए, गुलशन नौबहार, बहारे दानिश, पद्मावत, दास्तान, अमीर हमजा और सरुल बयान से इत्तफादा क्या है, तो यही इनका जो है मुताला करके जो है इन सबका जो है जामी, सौदामीर, मशफी, जुर्रात और मिहसन वगैरह के अशार भी शामिल हैं। सुरूर ने फसाना अजायब में लखनऊ की तारीख, कानपुर की मजम्मत की है। मतलब लखनऊ की जो है तारीफ की है और कानपुर की बुराई की है, मजम्मत की है। सुरूर ने फसाना अजायब में बादशाह गाजीउद्दीन हैदर और बादशाह नसरुद्दीन की शान में भी मध्य अल्फाज कहे हैं। सुरूर ने दास्तान फसाना अजायब को बादशाह नसरुद्दीन हैदर के दरबार में पेश किया था, क्योंकि नसरुद्दीन हैदर ने ही इनके कसूर को माफ किया था और फिर से इनको लखनऊ आने की इजाजत दी थी। फसाना अजायब का इम्तियाज इसके उसलूब मुआसरत के बयान ही में मजमर है। डॉक्टर ज्ञानचंद ने फसाना अजायब की अजमतकार राज इसके मुरस्सा असलूब में बताया है। कौन? डॉक्टर ज्ञानचंद। फसाना अजायब में लखनऊ की तहजीब और मुआसरत की भरपूर अक्कासी की गई पेश की गई है। फसाना अजायब में चीजों की तफसील देखकर सवेरस की याद आती है। फसाना अजायब में जो भी चीजों की तफसील की गई है, इससे जो है मुल्ला वजह का जो है दास्तान सवेरस इसकी याद आती है। एक मुल्ला वजह का जो है मसनबी है, वो मसनबी क्या है? कुतुबे मुश्तरी है। फसाना अजायब को कई नामों से जाना जाता है, मतलब फसाना अजायब, फसाना अजीब, किस्साए अंजुमन आरा, जाने आलम, किस्सा जाने आलम भी आई है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, फसाना अजायब को किन किन नामों से जाना जाता है? तो फसाना अजीब, किस्साए अंजुमन आरा, जान आलम और किस्सा जान आलम। तो इन सब नामों से इनको याद किया जाता है। इन सब नामों को छुपा कर क्या नाम रख दिया गया है? रजब अली बेग सुरूर द्वारा उनके मुतालिक फसाना अजायब। फवाद नाकिदीन ने फसाना अजायब को नाविल का पेश रू कहा है, नाविल का दर्जा दिया है। सुरूर ने फसाना अजायब के देवीचा में बजट तसनीफ के बारे में लिखा है कि उनके चंद दोस्त एक दिन आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे कि एक दोस्त ने किस्सा कहने की फरमाइश की और मैंने उसी पर अमल करते हुए चंद कलमात उनके सामने बयान किए। तो सुरूर ने फसाना अजायब के देवीचा में बजट तसनीफ के बारे में लिखते हैं कि उनके चंद दोस्त एक दिन आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे। दोस्त यार होते हैं तो बैठ के आपस में बातचीत करते हैं,
तो इसी तरीके से उनके दोस्त बोला कि एक किस्सा सुनाइए। तो उसी अमल में जो है चंद कलमात उनके सामने अपने दोस्त के सामने पेश किए, जिसे बाद में कानपुर के क़याम के दौरान दास्तान की शक्ल में पेश किया गया और 1240 में किताब मुकम्मल हो गई। हिजरी में किताब क्या हो गई? मुकम्मल हो गई। अब जो है फसाना अजायब का खुलासा है और इनके मकामात, इनके किरदार कौन कौन से हैं। तो ये कहानी दास्तान है। एक बादशाह जिसका नाम फिरोज बख्त था, मुल्क के खतन पर हुकूमत करता था। तो बादशाह का नाम क्या था? फिरोज बख्त, ठीक है। और मुल्क खतन पर हुकूमत करने वाला बादशाह था। मुल्क खतन का नाम किस्मत आबाद भी है। इसके आखिर में तमाम मखलूक खुशहाल है। खजाना ला इंतहा और वजीर अमीर जान फिसा है, लेकिन उसके बावजूद बादशाह कोई औलाद नहीं हुआ। कल जो है आपको एक वीडियो बताया गया है, वो कौन सा वीडियो था आपको याद है? चार दरवेश, ठीक है। और आजाद वक्त का इसी तरीके से उन बादशाह थी, लेकिन उनके कोई भी औलाद ना थे। इसी तरह फिरोज वक्त भी खुशहाल थे, लेकिन इनके बादशाह के लिए जो कोई औलाद ना था, इनका कोई वारिस ना था। 60 वर्ष की उम्र में एक फर्जंद की विलादत हुई। 60 वर्ष में इनको एक क्या मिला? वारिस मिला, जिसका नाम जान आलम रखा जाता है। नजूमी पेशीन गोई करते हैं कि शहजादा जान आलम 15 वर्ष की उम्र में घर से बेघर हो जाएगा, ठीक है। 14 साल की उम्र में जान आलम की शादी माह तलत से कर दी जाती है। एक दिन जान आलम बाजार से लाख रुपये खिलत के सिवा में एक ऐसा तोता खरीद कर लाता है जो बातचीत भी करता है। तो 60 वर्ष की उम्र में जो है फिरोज बख्त को एक फर्जंद हुआ, जिसका नाम क्या रखे? जान आलम रखे। नजूमी जो है उनको पेशगोई किए कि शहजादा जान आलम 15 वर्ष की उम्र में बेघर हो जाएगा, और 14 साल में जो है जान आलम की शादी माह तलत से कर दी जाती है, क्योंकि 15 वर्ष में बेघर हो जाएगा, ठीक है, नजूमी के कहने के मुताबिक। तो एक दिन जान आलम क्या होता है? बाजार जाता है, और बाजार से जो है लाख रुपये खिलत के सिवा जो है एक ऐसा तोता खरीदता है जो आपस में क्या करता है? बातचीत करता है इंसान के जैसे। रोज तोता शहजादी अंजुमन आरा का जिक्र जान आलम के सामने करता है। अंजुमन आरा का जिक्र सुनते ही जान आलम का दिल पुर्जे और दिमाग अकल से खाली हो जाता है। तो जो तोता जो है जान आलम खरीद के लाता है, तो अंजुमन आरा का जिक्र जो है जान आलम के सामने वो तोता जो है करते रहता है। तो ये जो है नाम सुन के जान आलम का दिल जो है क्या हो गया? दिमाग खाली हो जाता है, और गायबाना क्या करता है? वो इश्क कर बैठता है। तोते की मदद चाहता है कि तोते को पूछता भी होता है, क्योंकि उसके सामने अंजुमन आरा का जिक्र किया। तोता शहजादे से कहता है, मैंने हर चंद चाहा आप रंजे सफर मुशाइबे सफर बाशहर इजाए गुर्बत से बाज रहे के सफर और सकर की सूरत एक है, उससे बचना नेक है, मगर मालूम हुआ कि हुजूर के मुकद्दर में ये और लिखा है, मेरा कसूर इसमें क्या है। तो ये जो है तोते की मदद चाहता है, लेकिन तोते को क्या कर होता है? पछतावा भी होता है, ठीक है, क्योंकि अंजुमन आरा के बारे में जान आलम को बताया, और जान आलम जो है गायबाना क्या कर लेता है? अंजुमन आरा से इश्क कर लेता है। लेकिन इनकी शादी जो है माह तलत से 14 साल की उम्र में कर दी जाती है। अंजामकार तोते की रहबरी में शहजादा वजीर जादा के साथ मुल्क जरनिगार के लिए रवाना होता है, जहां शहजादी अंजुमन आरा रहती है। रास्ते में तोता उड़ जाता है, वजीर जादा पिछड़ जाता है, और शहजादा जान आलम एक तिलस्मी में गिरफ्तार हो जाता है। कहाँ गिरफ्तार हो जाता है? तिलस्म में गिरफ्तार हो जाता है। नक्श सुलेमानी से रिहाई मिलती है, फिर वादी फरहनाक में पहुंचता है। मलकाए मेहरनिगार से मुलाकात होती है। कहाँ? वादी फरहनाक में, और वो शहजादे पर फिदा हो जाती है। शहजादा वापसी का वादा करके मेहरनिगार से क्या होते हैं? रुखसत ले लेता है। मतलब शहजादा जो है जाने के बाद वापसी का वादा करते हैं मेहरनिगार से, और वहां से क्या करते हैं? रुखसत ले लेते हैं, और अंजुमन आरा के शहर जरनिगार पहुंचता है। अंजुमन आरा को एक जादूगर की कैद से छुड़ाता है, और उससे मिलकर दिल का हाल सुनाता है। अंजुमन आरा को जान आलम जो है जादूगर से उसको कैद से क्या करता है? छुड़ाता है, और उसे अपने दिल का हाल क्या करता है? सुना बैठता है। अंजुमन आरा का बाप जान आलम से खुश होकर दोनों की शादी मंजूर कर लेता है, फिर दोनों की शादी हो जाती है।
जान आलम और अंजुमन आरा की दोनों की शादी क्या हो जाती है। शहजादा अंजुमन आरा को लेकर वतन लौटते हुए मलका मेहरनिगार भी निकाह कर लेता है, मगर वजीरजादे की बातों में आकर शहजादा मुर्दा बंदर में अपनी रूह मुंतकिल कर लेता है। अब यहाँ जो है शहजादा अंजुमन आरा को जब लेकर वतन लौटते हुए जाता है तो मलका मेहरनिगार से भी निकाह कर लेता है। ठीक है, कौन? जान आलम। मगर वजीरजादे की बातों में आकर शहजादा जो है मुर्दा बंदर में अपनी रूह मुंतकिल करता है। एक बंदर मरा हुआ था, उसमें क्या करता है, अपना रूह मुंतकिल बदल लेता है और वजीरजादा जो है शहजादे के बदन में अपनी रूह मुंतकिल कर लेता है। तो मुर्दा बंदर में जो शहजादा जो है अपनी रूह मुंतकिल कर लेता है और वजीरजादा जो है शहजादे के बदन में अपनी रूह मुंतकिल कर लेता है। मालूम हुआ कि जान आलम ही ने वजीरजादे को तब्दीली रूह का अमल सिखाया है। फिर शहजादा बंदर से तोते के कालिब में आ जाता और वजीरजादा बकरी के बच्चा के कालिब में मुंतकिल हो जाता। आखिर वजीरजादे को सजा दी जाती है। ये जो है फसाना अजायब का दास्तान था। ठीक है, तो अब जो है इनके किरदारों की पहचान करेंगे। इसमें कौन कौन से किरदार हैं। किरदार से आपके सवालात पूछे जाते हैं बीपीएससी में भी और आपके DSS भी, TGT में भी, और अदर जो भी स्टेट की एग्जाम होते हैं उर्दू से रिलेटेड उसमें भी पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है जान आलम फसाना अजायब का हीरो और अंजुमन आरा का आशिक है, लेकिन इसमें अंजुमन आरा क्या है, हीरोइन है। जान आलम ही को शामियाने के तले मुसनिफ जवाहर निगार पर बैठाया जाता है। अंजुमन आरा जो कि फसाना अजायब की हीरोइन है और मलका जरनिगार की शहजादी और जान आलम की महबूबा है। फिरोज वक्त जो कि मुल्क खतर का बादशाह है, शहजादा जान आलम का बाप है, वालिद है। माह तलहत जिससे शहजादा जान आलम की शादी 14 साल की उम्र में हुई है। इसमें पूछा जाता है कि जान आलम कितनी शादियां की थी। 3 शादियां की थी। माह तलहत से पहली शादियां, दूसरी जो है आपके अंजुमन आरा से और तीसरी जो है मेहरनिगार से। मेहरनिगार फसाना अजायब का सबसे कामयाब और जानदार इसमें किरदार दिया गया है। अब पूछा जाता है कि फसाना अजायब का सबसे अहम मुतहर्रिक किरदार किसका है, तो मेहरनिगार का किरदार है। डॉक्टर नय्यर मसूद ने तो मलका मेहरनिगार को हीरोइन माना है। उनका कहना है कि मलका का किरदार अंजुमन आरा से ज्यादा बावकार है। किसका? मलका मेहरनिगार का। अब है सिपापाल जादूगर हैं। उसके बाद दिल आराम मलका मेहरनिगार की कनीज है। अब पूछा जाता है मलका दिल आराम कौन है, तो मलका मेहरनिगार की कनीज है। उसके बाद है ख्वाजा शिरा महबूब अली खान। निशात अफजा एक बाग का नाम है। अब पूछा जाता है निशात अफजा क्या है, तो एक बाग का नाम है। ठीक है, ना कि इंसान का नाम। कुहे मतलब बर और जहाँ जोगी रहता था। कुहे मतलब जो है बर है और जहाँ जोगी रहता था। फसाना अजायब में तोता एक अहम किरदार अदा करता है। दीगर किरदार, इसमें कुछ और किरदार दिए गए हैं। कौन कौन से किरदार हैं? वजीरजादा, चिरीमार, देवनी, सौदागर, जोगी, अंजुमन आरा का बाप, तोता। जान आलम और अंजुमन आरा का किरदार फसाना अजायब के मरकजी किरदार है। ठीक है, इसमें हीरो और हीरोइन जो होते हैं मरकजी किरदार होते हैं, लेकिन इसमें जो है अहम किरदार जो है माहे मलकाए मेहरनिगार का है। जान आलम और अंजुमन आरा के अलावा मलका मेहरनिगार, माह तलत और वजीरजादे के किरदार भी अहम है। ये सारे किरदार थे, भी आई हैं, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही आपके दास्तान से मुताल्लिक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।